اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ اخراجات کی اس تنگی نے مقبول کے دل و دماغ میں بغاوت کا بیج بو دیا۔ پہلے اس نے فورڈ فاؤنڈیشن کے کچھ عہدیداروں سے قریبی مراسم استوار کیے، پھر ان سے امریکی شہریت حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے ماموں کو خاموشی سے ٹھکانے لگا کر ساری جمع پونجی سمیت امریکہ منتقل ہو جائے گا، مگر فورڈ فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہوئے CIA کے ایجنٹوں کو پاکستان میں اپنے کام کی تکمیل کے لیے اکرم الہی کے متبادل کی ضرورت تھی۔ انہوں نے امریکی شہریت کے حصول کے لیے مقبول کی حوصلہ شکنی کی، مگر اکرم الہی کے خلاف اسے اکساتے رہے۔ مقبول کو اندازہ تھا کہ اس کھیل میں اصل اہمیت اس کی نہیں بلکہ اس کے ماموں کی بنائی ہوئی فائل کی تھی۔ فورڈ فاؤنڈیشن والے مقبول کے ذریعے وہ کاغذات حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایک مناسب موقع پر مقبول نے چالاکی سے کام لے کر اکرم الہی کو مائکرو سینٹر کے تہہ خانے میں قید کر کے خود فریڈم انٹرنیشنل کی باغ ڈور سنبھال لی۔ اس سے پہلے اکرم الہی نے اسے کوئی رقم دینے سے صاف انکار کر کے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے اخراجات کے لیے صرف مائکرو موٹرز سے ہی ہونے والی آمدنی کا چوتھائی حصہ لیتا رہے۔ مائکرو موٹرز سے ہونے والی یافت کا دوسرا چوتھائی حصہ اکرم الہی اپنی بہن یعنی مقبول چودھری کی ماں کو لاہور بھجوا دیتا تھا، جہاں وہ بیوگی کے عالم میں 7 بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ مقبول اس کی 8 اولادوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس نے اپنے ماموں پر ہاتھ ڈالتے یہ مشہور کر دیا کہ وہ بیرون ملک چلا گیا ہے اور خود پورے نظم و نسق پر اپنا اختیار مضبوط کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے ہیروئن کے ان سوداگروں سے بالکل قطع تعلق کر لیا جو اس کے ماموں کے چہیتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ دوسرے ذرائع سے ہونے والی آمدنی ہی اس کے لیے کافی تھی۔ ماموں کو زندہ رکھنا اس کی ایک مجبوری تھی۔ فورڈ فاؤنڈیشن میں موجود افراد مقبول سے کام ضرور لیتے تھے، لیکن فاؤنڈیشن کے بھاری فنڈز ان کی دسترس سے باہر تھے۔ ہر سازشی تنظیم کی طرح فورڈ فاؤنڈیشن سے ایشیائی ہمدردوں کے لیے رقوم کی فراہمی کا اختیار صرف اور صرف فاؤنڈیشن کے امریکی نژاد وائس چیئرمین کو تھا۔ جب سے اکرم الہی نے اپنے مطالبات کی تکمیل کے لیے اسے آنکھیں دکھائی تھیں، اس نے فنڈز کے اجراء کا روایتی طریقہ اچانک ترک کر دیا تھا اور رقوم صرف اکرم الہی سے براہ راست بات کرنے کے بعد جاری کرتا تھا۔ اکرم الہی کی وہ فائل کہاں ہے جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا؟ اس کی کتھا پوری ہو جانے کے بعد میں نے سختی کے ساتھ اسے پوچھا۔ فائل؟ اسے بھڑک کر میری طرف دیکھا، پھر ہذیانی لہجے میں بولا، میں کسی فائل سے واقف نہیں۔ مجھے تم بھی ان لوگوں کے گرگے معلوم ہوتے ہو جو کبھی کبھی میرے ماموں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ وہ اندیشہ شروع سے اس کے ذہن میں پرورش پا رہا تھا کہ فورڈ فاؤنڈیشن والے دوستی اور ہمدردی کی آڑ میں اس سے کاغذات واپس لینے کی کوشش کریں گے۔ میں نے فوری طور پر مقبول چودھری کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، شاید تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ جو چیز حاصل کرنے کا ارادہ کر لیں اس تک پہنچے بغیر دم نہیں لیتے۔ تم نے سیدھی طرح تعاون نہ کیا تو ہم ایک ایک کر کے تمہاری ساری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ تم جو بھی ہو پاکستانی ہو۔ میرے ان الفاظ پر اس کا لب و لہجہ ایک دم تبدیل ہو گیا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کن لوگوں کے جال میں پھنس گئے ہو؟ بیچ میں مت آؤ، میں ان لوگوں کو خود دیکھ لوں گا۔ بکواس مت کرو، میں نے اس کے زخمی اور متورم چہرے پر تھپڑ مار کر کہا۔ تم ایک مدت سے ان کا مال کھا رہے ہو، اب ہماری باری آئی ہے تو تمہیں پاکستان یاد آ رہا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، وہ فرش پر خون تھوکتے ہوئے بولا۔ دم خم ہے تو وہ فائل خود ڈھونڈ لو، ہم نرگس کو بھی یہیں اٹھا لائیں گے۔ میں نے مانی کر لہجے میں اسے دھمکی دی۔ اس کی ماں کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ تم کوئی کروڑ پتی نہیں، بالکل کنگال آدمی ہو، تم اس سے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ وہ تڑپ کر بولا، مرد ہو تو مجھ سے لڑو، عورتوں کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ وہ تمہاری عورت نہیں، محفلوں کی جان ہے۔ تمہارا سوگ منانے کی بجائے وہ آج شام ایک گجراتی سیٹ کے مجرے میں گئی ہوئی ہے۔ ایسی عورتیں صرف پیسے کی یار ہوتی ہیں۔ میں نے اسے غیرت دلائی، تو مجھے اس کے خلاف نہیں بہکا سکتے۔ وہ گندے ماحول میں ضرور رہتی ہے مگر بہت اچھی لڑکی ہے، کیچڑ میں کھلے ہوئے خوبصورت کنول کی طرح۔ خدا کے لیے اس کا ذکر ایسی بے دردی سے نہ کرو۔ تم سے یہ ساری پوچھ گچھ رسمی سی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم نے زبان نہ کھولی تو بھاری خسارے میں رہو گے۔ میں نے تمہیں ہر بات بتا دی ہے، وہ فائل میری ہے، اس کے بارے میں کسی کو ہوا نہیں لگنے دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اکرم الہی اکیلا نہیں تھا۔ تمہاری آپس کی لڑائیاں دکھاوے کی تھیں، ورنہ اس فائل کے بارے میں تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو۔ اب اکرم الہی مر کر بھی ان کاغذوں تک نہیں پہنچ سکتا۔
मगर मेरी ये बात लिख लो कि इन कागजात के साथ तुम भी बेमौत मारे जाओगे। मुफलिसी की जिंदगी से बेहतर है कि आदमी अपने एहसासों के लिए जान दे थे। वो किसी वजह से दोबारा हौसला पकड़ रहा था। मुझे महसूस हुआ कि वो जो कुछ कह रहा था इस पर अमल भी कर गुजरेगा। मैंने चूहे और बिल्ली का वो खेल वहीं खत्म करने का फैसला कर लिया। अगर तुम फाइल के बारे में जुबान नहीं खोल रहे तो फिर ये बताओ कि नसरीन के पास रखवाए हुए ब्रीफकेस में क्या है। वो तुम्हारा शजरा नस्ब तो हो नहीं सकता, वरना तुम उसे ऐसे गंद खाने में ना पहुंचाते। नसरीन और फिर ब्रीफकेस के जिक्र पर उसे शदीद ज़हनी झटके लगे। उसके जख्म खोरदा चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो इस ब्रीफकेस को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेगी, तुम इससे हाथ भी नहीं लगा सकते। उसने सारा पसो पेश खत्म करके खुशउम्मीदी का सहारा लेना शुरू कर दिया। मेरे होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। तुमने सच बोलने का मौका खो दिया है। तुम्हें यहाँ लाने के बाद हम सो नहीं गए थे। तुम्हारे और नरगिस के ताल्लुक के बारे में मुसलसल काम होता रहा है। वो ब्रीफकेस किसी भी वक्त हमारे कब्जे में आ जाएगा। वो इंकिशाफ सुनकर मकबूल चौधरी का ज़हन पटड़ी से उतर गया। नसरीन बाजी उस ब्रीफकेस की कदरों कीमत से अच्छी तरह वाकिफ है। अगर मैंने 3 मुसलसल रातें वहां बसर न की या नरगिस को साथ लेकर न गया तो वो ब्रीफकेस नसरीन का हो जाएगा। इसमें रखी हुई रकम उसकी होगी और वो फाइल वाला लिफाफा किसी पुलिस अफसर का पहुंचा देगी। वह अज़ियानी अंदाज में जोर जोर से चीख रहा था। मैं एक रात यहाँ गुजार चुका हूँ, दूसरी शुरू हो चुकी है और तीसरी गुजरते ही खेल खत्म हो जाएगा। इससे पहले वो ब्रीफकेस हमारे पास आ चुका होगा। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। वह हल्क फाड़ कर हंसा। हाथ लंबे हैं तो फिर मुझे कहानियां क्यों सुना रहे हो? वो ब्रीफकेस अब तक तुम्हारे कब्जे में क्यों नहीं आया? नरगिस और नसरीन बाजी तुम्हें इसकी हवा भी नहीं लगने देंगी। उसे ये तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो हमारे साथ चलकर नसरीन से अपना ब्रीफकेस वापस लेकर हमारे हवाले कर देगा। उसने मेरे इस शुबे की तस्दीक कर दी थी कि अकरम इलाही की फाइल इसी ब्रीफकेस में थी, लेकिन मेरा यह ख्याल बातिल साबित हुआ था कि इस ब्रीफकेस में सिर्फ फाइल ही थी। उसने अपने किसी बुरे अंजाम के पेश नज़र अकरम इलाही और फोर्ड फाउंडेशन की साख की तबाही का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। नसरीन एक खरीस और बदकिरदार औरत थी। नीमा के मुताबिक वो पहले ही मकबूल चौधरी के ब्रीफकेस पर दांत लगाए बैठी थी। यह पता नहीं था कि मकबूल ने रकम और फाइल के बारे में नसरीन को जुबानी कुछ बताया था या फिर इस बारे में ब्रीफकेस ही में कोई हदायत नामा रखा हुआ था। इस बारे में उसने मेरे हर सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। दोनों में से कोई भी सूरत होती वो हरीस औरत ब्रीफकेस जरूर खोलती और फिर रकम अपनी तहवील में लेकर शायद वही कर गुजरती जो मकबूल चौधरी चाहता था। वो मरहला आने से पहले ब्रीफकेस हासिल करना जरूरी हो गया था। अकरम इलाही और मकबूल दोनों ही मुल्क कौम के खुले गद्दार थे और इन्हें इस सरजमीन पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं था जिससे वो नमक हरामी कर रहे थे। मैंने स्टेशन 4 से रवाना होने से पहले ही अव्वल खान और गजाला से इस बारे में मशवरा किया था और वो दोनों मेरे हम ख्याल थे। इन दोनों को जहन्नुम वासिल करने का काम STF का कोई गार्ड भी आसानी से अंजाम दे सकता था। वो जिम्मेदारी अव्वल खान के सर डालकर मैं गजाला के साथ वहां से रवाना हो गया और अव्वल खान भी हमारे पीछे पीछे अपने घर के लिए निकल खड़ा हुआ। मैं ब्रीफकेस के बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। मुझे रह रहकर यह ख्याल सता रहा था कि नीमा एक जल्दबाज और जज्बाती लड़की थी। मैं आसानी से अपनी बातों का जादू चलाकर उसके जरिए ब्रीफकेस निकलवा सकता था, लेकिन यह मुमकिन नहीं था कि वह अनाड़ी लड़की अपनी जात को हर शक को शुबे से दूर रखने में कामयाब हो जाती। जो ही नसरीन पर ब्रीफकेस गायब होने का इंकिशाफ होता, इस 4 दीवारी में अपना वक्त गुजारने वाली हर लड़की अताब में आ जाती। नसरीन एक पूरे गिरोह की सरबराह थी। इसके सामने नीमा ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती थी। वो ब्रीफकेस मेरे हवाले करने के बाद इनका सामना करती तो तशद्दुद के नतीजे में सब कुछ उगल देती और अगर ब्रीफकेस के साथ खुद भी गायब हो जाती तो नसरीन को किसी से पूछताछ करने की जरूरत पेश न आती। फौरी तौर पर नीमा की तलाश शुरू कर दी जाती। मामला सिर्फ नीमा की जात का होता तो इसे कोई माकूल रकम देकर किसी दूसरे शहर की तरफ रवाना किया जा सकता था जहां वो नसरीन और उसके गुंडों की दस्तबरुद से महफूज रहती। लेकिन उसके साथ उसकी माँ, भाई और बहनों का भी मसला था। नीमा का सुराग न मिलने की सूरत में नसरीन अपने आदमियों या शनासा अफसरों के जरिए इन सब का जीना हराम कर देती। मैं सारे रास्ते इस मसले में उलझा रहा। नीमा घर की भेदी होते हुए भी मेरे लिए कारआमद नहीं थी। इसे इस्तेमाल करने के नतीजे में जो हालात रुनमा होते वो मुझे जिंदगी भर ज़मीर की मुलामत में मुब्तला रखने के लिए काफ़ी होते। इन तमाम बातों को सामने रखकर मैं इस फैसले पर पहुंच चुका था कि वो काम STF के जवानों को डंके की चोट पर करना चाहिए। नसरीन के घर के बारे में यह अंदाज़ा लगाना दुश्वार नहीं था कि वहाँ की तमाम तर रौनक और रंगीनी अंधेरा होने के बाद परवान चढ़ती होगी। दिन के उजाले में वो सब अपने बेरूप चेहरों को चादरों में लपेट कर अपने अपने कोनों खुदरों में पड़ी सोती रहती होंगी।
नीमा ने मुझसे किसी और का जिक्र नहीं किया था, मगर नसरीन और उसकी 2 बेटियों के बारे में यह जरूर बताया था कि वो तीनों इसी घर में रहती थी। अपने घरों में कहीं न कहीं मुलाजमत का बहाना करके नसरीन के इशारों पर नाचने वाली दूसरी लड़कियां शाम के मुकर्रा औकात में वहां आती थीं और वक्त गुजार कर रात गए या मुंह अंधेरे घरों को लौट जाती थी। इन कलीदी नकात की रोशनी में नसरीन के घर धावा बोलने के लिए सुबह का वक्त ही बेहतरीन था। 9 बजे के बाद इस इलाके के बेशतर मर्द अपनी मुलाजमतों या कारोबार के सिलसिले में घरों से निकल चुके होते। चंद अजनबी नसरीन के घर पहुंचते तो मोहल्ले में किसी को शुबा ना होता, क्योंकि इस घर में अजनबियों की आमदोरफ्त एक मामूल का दर्जा रखती थी। स्पेशल टास्क फोर्स के अराकीन ऐसी मुहिम्मात में आम तौर पर सादा शहरी लिबास ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनमें से बेशतर की वजह कथा ऐसी थी कि मुसल्ला हालत में इन पर फौजियों का गुमान होता था। हसन स्क्वायर से जरा पहले तक हमारा और अव्वल खान का रास्ता एक ही था। मैं यूनिवर्सिटी रोड पर गजाला से बातें करता हुआ आगे गाड़ी दौड़ा रहा था, अव्वल खान मेरे पीछे आ रहा था। सुबह की कार्रवाई के बारे में एक नतीजे पर पहुंचते ही मैंने इंडिकेटर और हाथ का इशारा देकर अव्वल खान को अपने पीछे सड़क के किनारे रुकने का इशारा दिया और बतदरीज गाड़ी रोक दी। अव्वल खान को शुबा हुआ कि हमारी गाड़ी में कोई खराबी हो गई है। वो इंजन बंद करते ही फिक्रमंदाना अंदाज में हमारी तरफ लपका था, मगर मैं इसी असना में अपनी गाड़ी से उतर चुका था। क्या हुआ, खैरियत तो है? उसने स्ट्रीट लैंप्स की मुलगजी रोशनी में मेरे लबों की मुस्कुराहट देखे बगैर सवाल किया। सब ठीक है, तुमने मेरी थोड़ी सी रात काली की है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना तुम्हारा दिन खराब कर दूं। ब्रीफ केस के लिए हमें सुबह ही कार्रवाई की तैयारी करनी पड़ेगी। तुम जिस वक्त और जहां चाहो मुलाकात हो सकती है, उसने किसी उज़र के बगैर कहा। यह काम तुम्हारे आदमी ही कर सकते हैं, मेरे या तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं। फिर भी मैंने तुम्हारे 3 आदमियों के साथ जाने का फैसला किया है। सबब यह है कि वो घर किसी हद तक मेरा देखा भाला है, तलाशी में जरा सी सहूलत रहेगी। इसका मतलब है कि तुमने नीमा के फोन का इंतजार करने का इरादा तर्क कर दिया है। मैंने सर हिलाकर उसके अंदाजे की तायद की और फिर इख्तिसार से उसे अपने फैसले की वजूद से आगाह करने लगा। एक प्रोग्राम तय करके हम दोबारा चल पड़े। मैंने गाड़ी बाएं जानिब मोड़ ली। अव्वल खान जमशेद रोड पर वाक़ अपने घर के लिए यूनिवर्सिटी रोड पर सीधा निकलता चला गया। घर पहुंचकर मैंने इस बात पर इत्मीनान का सांस लिया कि फिजा खुशगवार थी। वीरा और सुल्तान शाह के दरमियान दूर दूर तक तकद्दुर के जर्रा भी आसार नहीं थे। वो दोनों टेलीविजन खोले हमारे इंतजार में प्रोग्राम देख रहे थे। स्टेशन 4 पर जो कुछ हुआ वो किसी के लिए गैर मुतवक्का नहीं था। मेरी तरह इन दोनों को भी इस बात पर हैरत थी कि बेबसी के एहसास में पूरी तरह घिर जाने के बावजूद मकबूल चौधरी ने फाइल के बारे में अपनी जुबान क्यों नहीं खोली। ढांचे और साख्त में बुनियादी मुमासलत के बावजूद हर इंसान अपने मिजाज और ज़हनी साख्त में दूसरों से इतना मुख्तलिफ होता है कि इसके बारे में हतमी तौर पर कोई राय कायम नहीं की जा सकती। वो किसी भी लम्हे अपने मुकाबिल को चौंकाने या मुतहय्यर करने की सलाहियत रखता है। मकबूल चौधरी ने अपने रवैये से इस असूल की तौसीक की थी, जबकि अकरम इलाही इसके बरक्स साबित हुआ था। अगली सुबह 9 बजे अव्वल खान के 3 आदमी उसकी लैंड रोवर में खमर दरवाजे पर आ पहुंचे। इस मुहिम में वक्त की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद तैयार होकर इनके साथ हो लिया। अव्वल खान ने अपने तीनों आदमियों का इंतखाब बहुत एहतियात से किया था। इनके जुस्से और चेहरे मोहरे वाकई मरऊब कुन थे। इन पर पहली निगाह पड़ने के बाद ये पूछने की जरूरत बाकी नहीं रहती थी कि वो किस इदारे से ताल्लुक रखते थे। लैंड रोवर की नंबर प्लेट भी बदली हुई थी। असली नंबर प्लेट की जगह नया शहरी नंबर नजर आ रहा था। नंबर प्लेट के ऊपरी हिस्से पर गिलाफ चढ़ा हुआ था। मैंने फौजी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर ऐसे ढके हुए हिस्से देखे थे जिन पर शायद सितारे बने होते हैं, और उनकी तादाद से यह जाहिर होता है कि इस गाड़ी में किस रुतबे का हाजिर सर्विस से जर्नैल सफर कर रहा है। आमसी शहरी नंबर प्लेट के साथ वो गिलाफी हिस्सा नामानूस होने के बावजूद मरूब कुन था। मैंने ड्राइवर के साथ वाली नशिस्त संभाली और गाड़ी बर्ग रफ्तारी के साथ नई मुहिम पर रवाना हो गई। गरीबाबाद की तरफ से मोड़ काटकर शरीफाबाद में नसरीन का मकान तक पहुंचने के लिए खासी गुंजान आबादी से गुजरना पड़ता था, जबकि दूसरी तरफ से इतनी ज्यादा आबादी नहीं पड़ती थी। मैंने दानिस्ता पहला रास्ता लिया और आबादी वाले इलाके में हल्की सी वीरानी देखकर मुझे खुशी हुई कि मैंने इस काम के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब किया था। न सिर्फ मर्द रोजगार के सिलसिले में निकले हुए थे, बल्कि बच्चे बच्चियां भी स्कूलों और कॉलेजों की तरफ रवाना हो चुके थे। ऐसे में नसरीन के मोहल्लेदारों या पड़ोसियों की तरफ से किसी मुदाखलत का इम्कान नहीं था। लैंड रोवर सुबह रफ्तारी से सफर तय करती हुई नसरीन के घर के सामने रुकी और फिर हम चारों फुर्ती से अपने अपने दरवाजे खोलकर नीचे उतर गए। घंटी बजाने से पहले ही किसी ने आईनी दरवाजे में हल्की सी झुर्री पैदा करके बाहर झांका और दरवाजा फौरन बंद कर लिया। मैं चाहता तो इसी लम्हे फाटक का वो जैली पट धकेल कर अंदर घुस सकता था, मगर मैंने काल बेल बजाने को तरजीह दी। इस वक्त तक हम चारों के हाथ खाली थे, लेकिन पोशीदा होल्स्टर्स में भरे हुए आती हथियार बिल्कुल तैयार थे।
बेरूप चेहरे और उड़ी उड़ी सी रंगत वाली एक अधेड़ उम्र औरत ने दरवाजा खोला। हम चारों और हमारे अक्कम में खड़ी हुई लैंड रोवर पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खौफ से फैल गईं और होंठ खुश्क हो गए। मैं इस घर में सिर्फ नीमा से मिला था, नसरीन से तारुफ नहीं हुआ था। मैंने नीमा की जुबानी उसका नाम सुना था। मैंने अंदाजा लगाते हुए उससे कहा, हमें नसरीन से मिलना है। मैं ही नसरीन हूँ। अपने चिपकते हुए होंठों की वजह से वो मुश्किल कह सकी। अंदर चलो, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है, मैंने ताकमाना लहजा में कहा। घर में कोई मर्द नहीं है, उसने उसी तरह हकलाते हुए जवाब दिया। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। हमें मालूम है, मैंने इत्मीनान से कहा। हमें शिकायतें मिली हैं कि सरे शाम से इस घर में अजनबी मर्दों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी होता है, जो रात गए तक जारी रहता है। मेरी जुबान से वो 2 टोक अल्फाज सुनकर उसने बौखलाए हुए अंदाज में रास्ता छोड़ दिया। वो कितनी भी गई गुजरी थी, मगर इसे यह पसंद नहीं था कि उसके स्याह करतूतों के बारे में गली में खड़े होकर तबादला ख्याल किया जाए। अपने घर की बात वो घर की हदूद ही में तय करना चाहती थी। वो सीधी अपने ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ती चली गई। मैं इसके पीछे था। मैंने आंख के इशारे से अपने तीनों साथियों को बाहर आते ही में रुके रहने की हिदायत की और नसरीन के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। तुम्हें मालूम है कि महल्ले वाले तुमसे कितने बदजन हैं। मैंने ड्राइंग रूम में बैठते ही बात छेड़ी। थाने में तुम्हारी शिकायतें आती हैं और दबा दी जाती हैं। शुरफा अपनी इज्जत की वजह से खुलकर तुम्हारे सामने नहीं आते, मगर अब बात बिगड़ गई है। महल्ले वाले बिला वजह हमारे दुश्मन है साहब। वो दोनों हाथ जोड़कर हकलाते हुए खुशामद पर उतर आई। कई बदमाश मेरी बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं। हम माँ बेटियों को बदनाम करने के लिए वो ऐसी घटिया हरकतें करते रहते होंगे। आप थाने वालों से पूछ लें, इन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। हम तो हर अफसर की इज्जत और खिदमत करते हैं। मैंने उसकी आखिरी और ज़ुमानी फिक्रे की गिरफ्त करने के लिए कहा। मकबूल चौधरी ने तुम्हें इससे भी बड़े चक्कर में फंसा दिया है। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो उसका रुकवाया हुआ ब्रीफ केस ले आओ। हम खामोशी से वापस चले जाएंगे। वो तो उसकी अमानत है। उससे मुजामत की, मगर वो ब्रीफ केस की मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकी। लालच में मत पड़ो, मैंने उसकी बात काट कर कहा। ब्रीफ केस में थोड़ी सी रकम के साथ सिर्फ कागज भरे हुए हैं। इसमें कोई खजाना नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सके। कागज है? उसके चेहरे पर मायूसी की लकीरें फैल गई। वो तो इस ब्रीफ केस को अपनी जान से ज्यादा अजीज बता रहा था। इन कागजियों की अहमियत हमारे लिए है या उसके लिए थी? वो गद्दार और जासूस है। तुमने मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया तो हम इस घर की तलाशी लेकर वो ब्रीफ केस ढूंढ लेंगे और तुम अंदर हो जाओगी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो उठ खड़ी हुई। गद्दारी और जासूसी के इल्जामात ने उस पर बराह रास्त है और गहरा असर किया था। आप यहीं बैठे, मैं ब्रीफ केस लेकर आती हूँ, उसने खौफजदा आवाज में कहा और अंदर चली गई। मुझे इत्मीनान था कि मेरे साथियों ने इस दौरान में घर से निकासी का हर रास्ता मसदूद कर दिया होगा। अगर नसरीन ब्रीफ केस लेकर भागने की कोशिश करती तो STF वाले उसे नाकाम बना देते। मैंने वक्त गुजारने के लिए सिगरेट सुलगा ली, लेकिन नसरीन मेरी तवक्का से पहले ही लौट आई। उसके दाहिने हाथ में कीमती ब्रांड का स्याह ब्रीफ केस झूल रहा था। नसरीन ने ब्रीफ केस के बारे में मेरी बातें सुन ली थी, फिर भी उसकी जान इसी में अटकी हुई थी। उसने हिचकिचाते हुए ब्रीफ केस मेरे सामने रख दिया और बोली, मकबूल आया तो मैं उससे क्या कहूँगी? वो अब हमारा मेहमान है, जिंदगी भर तुम्हारा रुख नहीं कर सकेगा। मैंने उसे यकीन दिलाया। नसरीन ने ब्रीफ केस मेरे हवाले कर दिया, मगर हसरत भरी हरीसाना नजरों से उसी की तरफ देखे जा रही थी। मुझे यकीन था कि इससे महरूमी के बाद वो हर एक से रोती गाती रहेगी कि कुछ अफसरों ने उसे एक भरे खजाने से महरूम कर दिया। इससे हमें कोई नुकसान ना पहुंचता, लेकिन हमारी गैर हकीकी फौजी शनाख्त के हवाले से एक बेबुनियाद कहानी फैल सकती थी। मैंने ब्रीफ केस नसरीन के सामने खोलने का इरादा जाहिर किया तो उसका चेहरा दमक उठा और वो इसी तरह आगे बढ़ाई कि ब्रीफ केस खुलते ही उसका अंदरूनी जायजा ले सके। ब्रीफ केस मुकफ्फल था। मैंने अपने बगली होस्टर से रिवाल्वर निकाला तो नसरीन सहम गई। मैंने एहतियात से चैम्बर खाली करके गोलियां अपनी जेब में डाली और खाली रिवाल्वर के आहिनी दस्ते की जरबात से यके बाद दीगरे दोनों ताले तोड़ दिए। सबसे ऊपर एक कागज पर नसरीन के लिए मिन्नो वही हदायत दर्ज थी जो मकबूल चौधरी मुझे बता चुका था। मैंने जली हरूफ में लिखा हुआ वो खुला वर्क तय करके अपनी जेब में डाल लिया। इसके नीचे 1000 रुपए के नए नोटों की एक गड्डी और 500 की 2 गड्डियां मौजूद थी। अगर इन तीनों गड्डियों में नोट पूरे थे तो वो कुल रकम 2 लाख रुपए बनती थी। गड्डियों के नीचे बड़े साइज का एक लिफाफा था जिसमें हमारी मतलूबा फाइल मौजूद थी। फोर्ड फाउंडेशन के मुतअद्दिद लेटर पैड्स और इन पर मतबूआ पैगामात मौजूद थे। कई लंबे टेलेक्स पैगाम भी थे। मैंने फाइल दोबारा लिफाफे में रख ली। इसमें तो कागजों के साथ 2 लाख रुपए भी हैं। नसरीन ने अपनी हथेलियां मलते हुए कहा, आपको कागजों की तलाश थी, मुझे अपनी बच्चियों के लिए रकम की जरूरत थी। आप मुझ पर रहम करें तो हम दोनों की जरूरत पूरी हो सकती है। मैंने खफगी से उसे घूरा। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने 500 के नोटों की एक गड्डी उसकी तरफ उछाल कर कहा, यह रख लो और अब भूल जाना कि मकबूल ने तुम्हें कोई ब्रीफ केस दिया था।
بقیہ دونوں گڈیاں بھی میں نے فائل والے لفافے میں ڈالی اور شکستہ بریف کیس وہیں چھوڑ کر اٹھ گیا۔ مفت میں 50,000 روپے ہاتھ آ جانے پر نسرین بہت خوش تھی۔ ہماری آمد پر اسے جس خوف اور دہشت سے گزرنا پڑا تھا وہ سرے سے غائب ہو چکی تھی۔ اس نے دروازے پر ہمیں ایسے تپاک سے رخصت کیا جیسے اپنے قریبی رشتہ داروں کو الوداع کہہ رہی ہو۔